strategist. So strategy is more important than your action. To create any object, to create any physical object, first and foremost thing is to make the strategy कि how this product, how this outcome will be arrived. यही होता है ना. So a strategy is much more important than other process activities of the manufacturing of product. And that process where you start and where it comes end, are you getting my point? That process is known as TQM, Total Quality Management. What is Total Quality Management? Right from a start to finish or making any product, each and every phases of the process would be checked for the quality purpose. That quality check process is known as TQM, Total Quality Management. That is just for your reference. So we have started GS3 for purpose of preliminary as well as mains examination, and consisting three areas, that is economics, science and technology, and third is disaster and internal security, etc. Whosoever is not available in the previous class, the 7 number of questions has been left out. It reflects that the number of 8 question is also 9 is also done. ये भी हो गया. जो छूट गया आपका वो मैं बाद में देखूंगा. तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो 10-11 क्वेश्चन छूट गया उसके लिए हमारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा, बाद में मैं उसको रिपीट करूंगा. ठीक है, अभी इसको चलने देते हैं, या सैटरडे को रिपीट करने के अलग से क्लास होगा. Question is that this is the methodology to teach you, because if you are reading the textbook, the same textbook or same material, if I am again and again submitting before you, then you will be realize that there is no need to come into the coaching class, because that can also be taken by yourself in the room. No need to join the coaching class. Coaching class purpose is that how to make the strategy so that you should understand the question and you should get the answer from the preliminary options as well as the mains examination. ऐसे चला दो. The question is that कि formalizing the informal sectors in interest of both. ये क्वेश्चन ही कुछ गलत लग रहा है यार, कुछ छूट गया है इसमें. फॉर्मलाइजिंग द ओ नहीं, ठीक है, देखो मुझे ही समझ में नहीं आया पहले झटके में, मैं सोचा गलत. ये कह रहा है कि फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल सेक्टर इज इन इंटरेस्ट ऑफ बोथ. ये क्वेश्चन सब हम खुद बनाते हैं, फिर आपको बनाते समय आई ऑलवेज कीप इन माइंड that the question should be the based on some previous examinations either in UPSC या various examination taken by UPSC or any state PCS exam. तो इसलिए करता हूँ ऐसा, so that I should realize the mindset of question setter, what mindset having the question setter and what he desires, he or she desires, or what does he or she thinks. क्योंकि जो आपका क्वेश्चन सेटर होता है वो दिल्ली का हो जरूरी नहीं है, समझ रहे हो, अरुणाचल का होता है. जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर क्वेश्चन सेट करते हैं, समझ गए. कभी कभी स्टेट यूनिवर्सिटी से भी क्वेश्चन मंगाया जाता है और कुछ क्वेश्चन ब्यूरोक्रेट्स जैसे लोगों से मांग लिया जाता है. तो बाय मैपिंग दैट माइंडसेट ऑफ द क्वेश्चन सेटर located in south or east or north or west, that mindset is required to be mapped by me so that I can reproduce the correct and relevant material for your preparation.
तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल, व्हाट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी? फॉर्मल सेक्टर होगा, नहीं होता है। तो फॉर्मल मीन्स कि जो फैक्ट्री सारे रूल रेगुलेशंस के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज रन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड लॉज एंड मैनुअल्स। एंड व्हाट इज द रूल्स लॉज एंड मैनुअल्स? ट्रेड यूनियन लॉज, प्रोडक्शन लॉज, कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये सारे एक्ट बने हुए हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑल दैट एक्ट्स? ग्रेचुटी एक्ट, बोनस एक्ट बना है ना, कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ये सब किस लिए बने हैं? सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स प्रोडक्शन यूनिट, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री, दैट शुड बी टेकन केयर बाई all the rules by the factory, so that workers should not get hampered by the production process. क्लियर है? उत्पादन के क्रम में सामान बनाते समय फैक्ट्री में किसी श्रमिक को कोई नुकसान न हो जाए, इसके लिए ये सारे लॉज बने हुए। तो जहाँ पे ये लॉज लागू हो जाते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल, औपचारिक। और जहाँ पे ये सब रूल रेगुलेशन नहीं लागू होते जबकि लागू होना चाहिए था, दैट सेक्टर इज नोन एज इनफॉर्मल। इसमें दोनों हो सकता है, जहाँ पे लागू होना चाहिए था और नहीं लागू हुआ, या अथवा हो ही नहीं सकता, दे डोंट क्वालिफाई फॉर एप्लीकेशन ऑफ दैट रूल। क्लियर है? दोनों आ जाएगा। ये पूछ रहा है कि फॉर्मलाइजिंग यानी औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टर किस तरीके से एक दूसरे के हित में है। देखिए ना ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि अभी जो हमने बताया फॉर्मल सेक्टर, जैसे BHEL, NTPC, ONGC, BSNL, ये सब फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर क्या हुआ? दर्शन ढाबा, IS प्रीसा, IS कोचिंग, ठीक है, छोटी मोटे और ऑर्गेनाइजेशन सर्विस या जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया? इनफॉर्मल। तो अब ये कह रहा है, या जैसे फैक्ट्री में आपने देखा होगा छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, एंसिलरीज बोलते हैं उसको। उस बड़ी फैक्ट्री का कोई एक पार्ट बनाती है, जैसे पिन बनाना है, BHEL फैक्ट्री है, वहाँ पे पहिया बनना है, तो पहिया वो नहीं बनाता, बगल वाला एंसिलरी बनाता है, जहाँ 50, 10, 20 लेबर होते। तो दैट इज अनौपचारिक और औपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल। अब कह रहा है, ये आप समझ गए, तो कह रहा है दोनों एक दूसरे के हित में कैसे हैं, ये पूछ रहा है। ये पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, अदरवाइज आंसर समझ में नहीं आएगा। आर यू क्लियर कि हाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, समझ में फॉर्मल इनफॉर्मल आ गया। अब कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट में, एक दूसरे के हित में, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे? ये नहीं पूछ रहा कि क्यों है, ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ तक है, दैट इज नॉट आस्किंग कि व्हाई, कि क्यों है, ये पूछ रहा है कि कैसे है भाई, ये तो बताओ। तो फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल सेक्टर इज द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट। द इनफॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट आर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे कोचिंग का हमने नाम लिया, and are not subject to taxation, labor laws or social protection. These activities can include street vendors, domestic worker and small scale producer. आगे, here are some reasons why formalizing the informal sector is beneficial for both worker and the government. समझ रहे हैं? जहाँ पे रूल रेगुलेशन लागू हो रहा है, जहाँ पे नहीं लागू हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड टू ईच अदर, जैसे वर्कर के केस में है। Formalizing the informal sector can provide workers with legal recognition and protection under labor laws, such as minimum wage, workplace safety, regulated and social security. It can also lead to better working condition, higher earning and greater access to credit and other resources. तो वर्कर के लिए भी फायदेमंद है। दूसरा किसके लिए है? गवर्नमेंट
फॉर्मलाइजिंग द इनफॉर्मल सेक्टर कैन हेल्प द गवर्नमेंट इंक्रीज इट्स टैक्स। अब सपोज गवर्नमेंट आके कहे कि आप अपने कोचिंग सेंटर को फॉर्मलाइज करिए, क्योंकि आपके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, रूल है कि 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड करिए। अगर सरकार इस पर अड़ जाए तो क्या होगा? कोचिंग वाला कहेगा हजूर अभी तो आमदनी नहीं है, कहो तो बंद कर दूं कल से। यही कहे भाई, ऑनर क्या कहेगा, दर्शन ढाबा क्या कहेगा कि भाई इतना टैक्स दे नहीं सकता, तो हम आपका रूल फॉलो नहीं कर सकते, तो इट इज़ बेटर टू क्लोज इट। अब आप जब क्लोज करने की बात करेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा एरिया का बच्चे खाना कैसे खाएंगे, तो उसी सेंस में कह रहा है कि गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा इनफॉर्मल सेक्टर को रिलैक्स करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं स्कैन करना पड़ता। तो इन दैट सिचुएशन वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। किसके लिए? जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना? तो इस तरीके से दोनों इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद है। इट इज़ बेटर टू टीच फ्री ऑफ क्लासेस रेदर देन क्लोज द शटर डाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दैट वे अब जोमेटो है, जैसे वो सारे रूल रेगुलेशन लागू करने चलेगा तो वो जो बच्चा काम कर रहा है, क्योंकि 8 घंटा पहले ही काम करके आया 2 घंटे वो करने के लिए, तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। रिलैक्सिंग द रूल्स रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर इज सिम्बायोटिकली बेनिफिटेड टू ईच अदर। इसको ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्वरूप को और इनफॉर्मल दोनों। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमने दो दिया, जोमेटो है, ये है 8 घंटे आप कहीं और काम किए या 8 घंटे पढ़ाई किए, उसके बाद आप फिर काम कर रहे हैं, तो दैट इज अगेंस्ट द रूल। बट द क्वेश्चन इज दैट if he or she is trying to improve his or her economic condition, in that situation it is okay. In summary, formalizing the informal sector is in the interest of both worker and the government. It can lead to better working condition, higher earning, increased tax, better economy, this that, but not in a single step. It should be gradually converted. ठीक है, आपके पास बच्चे कम हैं, कोई बात नहीं, आप चलाइए। जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तब आप टैक्सेशन। तो दिस इज द वे। एक क्वेश्चन अगला आ गया, व्हाट इज स्लो डिपॉजिट ग्रोथ, व्हाई डिड इट हैपन इन इंडिया? स्लो डिपॉजिट ग्रोथ, क्वेश्चन को ठीक से समझिए। स्लो डिपॉजिट ग्रोथ, डिपॉजिट्स आपको मालूम होगा, इन्वेस्टमेंट, जमा करना पैसा, एफडी आरडी, आजकल तो तमाम तरीके की स्कीम्स है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इंडिया में डिपॉजिट जो है, डिपॉजिट जो बचत वो है, योजनाएं है, बचत खाता जो आप जिसमें पैसा बचाते हैं, 10,000 रुपये कमाए, 3,000 बचा लिए कि इसको LIC में लगाऊंगा, इक्विटी में लगाऊंगा, कहते हैं ना। तो ये कह रहा है कि देश में ये बचत की जो टेंडेंसी है, बचत की जो ग्रोथ है, व्हाई इट इज स्लो? जस्ट थिंक